रज़ाकार छोटे छोटे बच्चों को समझा दें, खड़े हुए बिला वजह क्यों नजर आते हैं, आप रज़ाकार में बैठ जाओ कुर्सी लेकर। और ऊपर खवातीन जो आई हैं वो दीन की बात सुनने के लिए आई हैं या अपना हंगामा और अपना नाम, बहुत अजीब लग रहा है। क्या तासुरात लेके जाएंगे हमारा बुजुर्गान दीन। औरतों को बहुत अदब वाला होना चाहिए, मस्जिद में है, अल्लाह के घर में है, खामोशी अख्तियार करें, खुद भी सुने, दूसरों को सुनने का मौका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قابل صدر کرام، صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، پردہ نشین خواتین ملت اور پیارے بچوں، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے بابرکت اور نورانی ماحول میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس میں قرآن و حدیث کے تناظر میں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں جن سے ہماری زندگی کی اصلاح وابستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اجلاس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ابھی تک بتائی جا چکی ہیں یا آئندہ بتائی جائیں گی، اللہ ان ساری باتوں کو عملی طور پہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیش رو فاضل مقرر جن اہم امور کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ فرما کے گئے ہیں، عمل کے لیے تو اتنا ہی بہت کافی ہے۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ میں بھی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں رکھوں، تو میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ سب کو حق سننے کی توفیق بخشے، اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو خود بھی سمجھیں اور اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی صاحب آپ سے ملاقات کے دوران آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی سوال آئے
کہ آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ آپ کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، قرآن مجید۔ یہ کتاب ہدایت ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ جس نے بھی آپ سے پوچھا اور آپ نے اس کے جواب میں قرآن کہا تو وہ آپ سے یہ سوال کرنے کا بھی حقدار ہے کہ آپ ہمیں لفظ قرآن کے معنی بتا دیجئے، لفظ قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کی مذہبی کتاب ہے لفظ قرآن، جس کو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، آپ کے گھروں میں کتاب ہدایت کے عنوان سے یہ کتاب موجود ہے، قرآن کے لفظی معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا۔ پورے قرآن کے ترجمہ اس کی بات نہیں کر رہا میں، لفظ قرآن کا ترجمہ اس کو نہیں معلوم کہ قرآن کے معنی کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کتاب ہدایت کا وہ نام جو سب سے زیادہ متعارف ہے، ویسے تو قرآن مجید میں قرآن کے متعدد نام ہمارے اللہ نے بتائے ہیں، لیکن اس کتاب ہدایت کا سب سے معروف و مشہور نام قرآن ہے۔ اس کی ٹائٹل پر قرآن مجید القرآن الکریم لکھا ہوتا ہے۔ کیا اہل ایمان نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ جس دن امت نے لفظ قرآن کا ترجمہ سمجھ لیا، میرا یقین ہے، میرا وجدان ہے کہ قرآن مجید سے مزید الفت، محبت، انسیت اور اس کو جاننے کا جذبہ پیدا ہو کے رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب ہدایت کے جہاں متعدد نام اسی کتاب میں نازل فرمائے، ان ناموں کے درمیان ایک نام قرآن ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لفظ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے سب سے زیادہ جس کو پڑھا جائے۔ اگر کسی کتاب کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، سب سے زیادہ پڑھا جائے، تو بس اسی کتاب کو قرآن کہہ سکتے ہیں۔ اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے اگر آپ تجزیہ کریں دنیا میں موجود تمام کتابوں کے درمیان اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ یہ دعویٰ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، بلکہ یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے کہ اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب اس روئے زمین پر ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، انہیں معلوم تھا جب اس کتاب کا نزول اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا اور ان کے ذریعہ سے یہ کتاب ہدایت اس کے بندوں تک پہنچے گی، تو اس کتاب سے زیادہ چونکہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے عالم الغیوب والشہادہ نے اپنی اس کتاب کا نام قرآن مجید رکھا۔ اگر آپ اس کا تجزیہ مدارس کی چہار دیواریوں میں پڑھے جانے والے قرآن کے علاوہ ایمان والے مزید اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، اگر اس کا تجزیہ کرنا ہے تو اللہ کا غیبی نظام دیکھیں۔ مشرق میں جہاں سب سے پہلے سورج شروع ہوتا ہے، جو بر اعظم آسٹریلیا ہے، وہاں جب صبح صادق ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو 2 رکعت جو سنتیں اہل ایمان وہاں کی ادا کرتے ہیں، فجر کی 2 رکعت سنتوں میں جب تک وہ قرآن نہیں پڑھیں گے ان کی وہ 2 رکعت نماز ادا نہیں ہو سکتی۔
اس کے بعد ان کو 2 رکعت نماز امام کی اقتداء میں فرض ادا کرنی ہے. وہ 2 رکعت فرض بھی اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس میں قرآن نہ پڑھا جائے. 4 رکعت نماز فجر کی آسٹریلیا سے شروع ہوئی. اس کے بعد آگے انڈونیشیا، پھر ملیشیا، تھائی لینڈ، سائڈ میں ہانگ کانگ، اور آگے بڑھے برما، پھر بنگلہ دیش، پھر آپ کا ہندوستان، اور آگے پاکستان، پھر اور آگے افغانستان. اس طرح چلتے ہوئے جب آپ بحر اٹلانٹک کے کنارے تک پہنچے گے، ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں یہ فجر کی نماز ادا نہ کی جا رہی. ہر آن، ہر لمحہ الگ الگ ملکوں کے لحاظ سے، الگ الگ بر اعظموں کے لحاظ سے یہاں صبح صادق ہوئی، پھر یہاں صبح صادق ہوئی، یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر لمحہ ہر آن فجر کی نماز میں یہ قرآن پڑھا جاتا رہا. وہ سلسلہ فجر کی نماز کا جو آسٹریلیا سے شروع ہوا اور یہ فجر کی نماز بحر اٹلانٹک کے کنارے تک پہنچی ہی تھی، قبل اس کے کہ یہ نماز کا وقت آگے بڑھتا آسٹریلیا میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. وہاں پہلے 4 رکعت جو سنتیں ادا کی جائیں گی ظہر کی، وہ تلاوت قرآن کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی. پھر 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے ظہر کی، وہ تلاوت قرآن کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی. اپنے ذہن کے پردے پر اس گردش لیل و نہار کو لائیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تمام بر اعظموں میں اوقات کی گردش کے لحاظ سے جب آپ صرف نمازوں میں پڑھے جانے والے سچ رکھتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کتاب اس روئے زمین پر نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جا سکتی ہے. نمازوں کے حوالوں سے یہ قرآن اتنا پڑھا جاتا ہے، کسی لمحہ قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی ہے. اور جب مدارس کے نظام کو آپ دیکھیں گے تو مدارس کا تعلیمی نظام بھی اوقات کے ساتھ میں چلتا ہے. طلبہ کو فجر سے پہلے اٹھا دیا جاتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد مدارس میں قرآن مجید کی تلاوت کا جو نظام ہے وہ آپ دیکھیں دنگ رہ جائیں گے. رب کائنات نے اس دھرتی پر اپنی کتاب کی تلاوت کا کیا غیبی نظام قائم کیا ہے. میرے رب نے اپنی اس کتاب کا نام اچھا رکھا اور بہت سچا رکھا. قرآن اس کا ترجمہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کس قدر خوش بخت و سعادت مند ہیں آپ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں وہ کتاب ہدایت عطا کی ہے جس سے زیادہ کسی کتاب کو پڑھا بھی نہیں جاتا. رب کعبہ کی قسم اس سے زیادہ کوئی کتاب محفوظ بھی نہیں ہے. حفاظت انتہا درجے کی، تلاوت انتہا درجے کی، ہدایت بھی انتہا درجے کی. اللہ ہم سب کو اس قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں قرآن کی اولین آیتوں کا نزول ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ان آیات کے نزول سے آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز ہوئے. قرآنی آیات کا نزول نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے. سب سے پہلے اسباب کے درجے میں اس قرآن کی حفاظت کا داعیہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہوا. جبریل امین جب اگلی آیت کی تلاوت کرتے تو نبی علیہ السلام پچھلی آیت کو اپنی زبان سے جلدی جلدی
पढ़ने और उसको रटने की कोशिश फरमाते। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह की अमानत अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने में कोई रुकावट पैदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमल से ये कहकर मना कर दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही, जल्दी करने के लिए आप अपनी जबान को बिल्कुल हरकत न दीजिए। आपको यही फिक्र है कि ये कुरान कहीं भूल न जाऊं मैं। इन्ना अलैना जमअ, इस कुरान को आपके सीने में महफूज कर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे आप कभी भूल नहीं सकते। सनक़ुरिउ का फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे आप भूल नहीं सकते। इस कुरान को आपके सीने में जमा करना ये हमारी जिम्मेदारी। वो कुरान, और आपकी जबान से इसे पढ़वा देना भी हमारी जिम्मेदारी। और फिर अल्फाज के जामे में छुपी हुई मुरादों को बयान कर देना ये भी हमारी जिम्मेदारी। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, अल्फाज के जामे में जो मेरी मुरादें छुपी हैं इनको आप पर कोई और नहीं, मैं वाज़े करूंगा। तफसील में जाए बगैर एक जुमला अर्ज कर दूं, उसकी तफसील का मौका नहीं है, लेकिन अकीदे के तौर पे आपको ये मान के चलना पड़ेगा। अल्लाह ने अल्फाज़े कुरानी के मानी, उसके मफाहीम, उसकी मुरादें अपने नबी पर इस तरह उजागर की हैं कि कुरान मजीद का जो मफ़हूम अल्लाह ने अपने नबी को बताया वो जिब्रील को भी नहीं मालूम था। जिब्रील ने अलिफ लाम मीम पहुंचा तो दिया है मुस्तफा की बारगाह में, मगर रब्बे काबा की कसम जिब्रील को अलिफ लाम मीम का मफ़हूम नहीं मालूम। ये अल्लाह को मालूम है, उसके रसूल को मालूम। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबल नूर की आखिरी चोटी पर बने हुए गारे हिरा में जिस कुरान का आगाज, जिस कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ, नबी की 23 साला पैगंबराना जिंदगी में उस कुरान की तंजील मुकम्मल हुई। 23 साला पैगंबराना जिंदगी में यह कुरान नबी पर नाजिल हुआ। क्या इसी तरह जिस तरह आज आपके हाथ में 2 गत्तों के दरमियान कुरान 30 पारों पर 114 सूरतों की शक्ल में मौजूद है? नहीं, यह कुरान की नुज़ूली तरतीब नहीं है। कुरान की नुज़ूली तरतीब बिल्कुल अलग है। जो मौजूदा तरतीब है ये भी नबी की आता करदा है और नबी की मुतय्यद करदा है, लेकिन नुज़ूल की तरतीब दूसरी है। हजरत मौलाना अतीकुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया को और अल्लाह उन तमाम अफराद उम्मत को जो कुरान की तहफीज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनके मदारिस में कुरान को पढ़ाया जा रहा है, हिफ्ज कराया जा रहा है, अल्लाह इन सबको सरसब्ज़ो शादाब रखे, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। इनके यहाँ वही काम हो रहा है जो नबी की बारगाह में हुआ करता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि हजरत मौलाना अतीकुल्लाह साहब का वो मदरसा जो इस मस्जिद में वाक़े है वहां होता क्या है, आप लोग अक्सर ये जवाब देते हैं कि वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, वहाँ नाज़रा पढ़ाया जाता है, वहाँ हिफ्ज़ कराया जाता है। जवाब आपका सही है, गलत नहीं है, लेकिन आज के इस मुक़्तदर स्टेज से मैं आपको एक दूसरा जवाब बताने जा रहा हूँ। उसको अपने दरमियान आम कीजिए, जो हकीकत पर मबनी है, उसकी दावत और उसकी तबलीग आपस में उसको कीजिए, आम कीजिए उसको। अगर कोई पूछे कि हजरत मौलाना अतीकुल्लाह साहब के मदरसे में क्या होता है, पूरे वसूख, पूरे यकीन के साथ कह देना कि मौलाना के यहाँ मदरसे में नबी वाला काम होता है। करेंगे ऐसा? कहेंगे ऐसा? तमाम मदारिस में नबी वाला काम होता है। आप बताएं सहाबा को यह कुरान हिफ्ज़ किसने कराया? 23 साला पैगंबराना जिंदगी में कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ, उधर कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ, इधर सहाबा का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ।
आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा जब उम्मत का जहन ये बनेगा कि मदारिस में नबी वाला काम होता है, तो जहनों में एक साल इख्तिलाफ आएगा, नबी वाला काम किस उन्वान से होता है। चंद इशारे मैंने आपके सामने रखे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को हिफ्ज़ कराया, कुरान पढ़ाया, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। ये 4 फराइज़ मनसबे कुरान ने नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए हैं। इसमें कुरान सुनाना नबी वाला काम बताया गया, इसमें कुरान सिखाना नबी वाला काम बताया गया, इसमें हदीस का सिखाना नबी वाला काम बताया गया, और जो तज़किये नफ्स है ये भी नबी वाला काम बताया गया। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह मारिफुस सुनन के मुकद्दमे में बड़ी अजीब बात लिख गए, बहुत कीमती बात। खुदा करे हम भी उस बात को अपने सीनों में महफूज करने वाले बन जाएं। हजरत लिखते हैं कि इस तरह की आयात में अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के 4 फराइज़ मनसबी बयान किए हैं। एक उनकी जिम्मेदारी है कुरान की तिलावत करना। हजरत फरमाते हैं कि ये मनसब अल्लाह ने अपने नबी के हवाले से कुर्राए कराम को अता कर दिया। जितने कुर्रा हैं कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, उनको नबी की तरफ से ये जिम्मेदारी मिली है, वो नबी के इस अमल के तर्जमान बन गए। नबी किस कदर हसीन आवाज में कुरान पढ़ते होंगे, इस रुए जमीन पर मेरे मुस्तफा से बेहतर अंदाज में कोई कुरान पढ़ने वाला ना हुआ ना हो सकता है। सबसे बड़े कारी यतलू अलैहिम आयातिही की नुमाइंदगी कुर्राए कराम कर रहे हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब, इसकी नुमाइंदगी मदारिस में दर्जे हिफ्ज़ और जो उलमा तैयार किए जाते हैं वो सब तालीम किताब में शामिल है। वल हिक्मा, तमाम मुफस्सिरीन के इत्तिफाक है इसका तर्जुमा दानिशमंदी और हिकमत की बातों के साथ भी किया जाता है, मगर हर जगह मुराद है नबी की हदीस और नबी की सुन्नत। इसकी नुमाइंदगी उलमा कर रहे हैं। वो युज़क्कीहिम, अल्लाह उनके नुफूस का तज़किया कराने के लिए अपने नबी को जिम्मेदार बना रहे हैं। मेरे महबूब नबी आप इनके नुफूस का तज़किया कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम की एक नजर जिस पर पड़ गई, उसकी नफ्स की गंदगी ऐसी दूर हुई और वो इतना पाक और साफ बन गया कि इसी धरती पर अल्लाह ने उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का लक़ब दे दिया। अल्लाह उनसे राजी हो गया। नबी की नजर उन पर पड़ गई इस हाल में कि वो ईमान वाले हैं, और ये भी अपने अल्लाह से राजी हुए। ये मकाम बुलंद तरीन उनको मिला है नबी के तज़किये नफ्स की बुनियाद पर। हजरत मौलाना बिन नौरी फरमाते हैं कि इसकी तर्जमानी खानकाहों के अकाबिर और सूफिया कर रहे हैं। नबी के इन 4 कामों की तर्जमानी इस जमीन पर मौजूद है। हर एक से वाबस्ता रहिए, कुर्रा का एहतराम कीजिए, क्योंकि वो नबी के तर्जमान हैं। यतलू अलैहिम आयातिही के हवाले से उलमा और हुफ़ाज़ का एहतराम कीजिए, इसलिए कि वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा की वो तर्जमानी कर रहे हैं। खानकाहों से भी वाबस्ता रहिए और की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे हिफ्ज़ कराया था, आज मदारिस में हिफ्ज़ कराने की तरतीब अलग है। मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा को हिफ्ज़ कैसे कराया था, जरा उस पर गौर करेंगे तो ये इसमें भी मेरे मुस्तफ़ा का एजाज नजर आएगा, उनका मौजिज़ा समझ में आएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी सबसे पहले आयतें नाज़िल हुई, मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा को याद कराई। उसके बाद कोई आयत नाज़िल हुई तो आप फरमाते हैं कि इस आयत को फुला सूरत में फुला आयत के बाद याद करो, और इस आयत को फुला सूरत में फुला आयत से पहले याद करो। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह ने अर्श पे बुला के अपने नबी को अता कर दी, और ये तय है कि मेरे मुस्तफ़ा का सफर मेराज ये मक्की जिंदगी में हुआ था। पूरी सूरतुल बकरा मदनी है, आखिर की ये 2 आयतें मक्की हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने ये 2 आयतें मक्के में अपने सहाबा को याद करा दी और मदीने में सूरह बकरा याद कराई। और जब नंबर आया आमन रसूल याद कराने
کا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کو یہاں پہ یاد کرو، اس کو وہاں پہ یاد کرو۔ 23 سال میں الگ الگ مقامات کے لحاظ سے قرآن نازل ہوتا رہا۔ میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو الگ الگ مقامات پہ قرآن یاد کراتے رہے، ان آیتوں کو یہاں رکھو، ان آیتوں کو یہاں رکھو۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، اسی ترتیب سے صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ کس ترتیب سے؟ نزول کی ترتیب پر نہیں، آج کی ترتیب۔ اس میں نبی کا کس قدر اعجاز ہے۔ اگر آج کسی مدرسے میں نزول قرآن کی ترتیب پر درجے شروع کیا جائے، کوئی نہیں ٹھہرے گا، وہاں سب بھاگ جائیں گے۔ یہ قرآن میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے، جو کہ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس اجلاس کے عنوان میں 2 چیزیں شامل کی ہیں، سیرت النبی اور جلسے دستار بندی۔ تو آئیے قرآن کے حوالے سے سیرت النبی کی چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اگر وقت بچے گا تو پھر قرآن مجید کے مطالعے کی ترتیب آپ کے لیے کیا ہونی چاہیے۔ علماء کے لیے قرآن مجید کے سمجھنے کا نصاب الگ ہے، اور آپ کے لیے قرآن مجید کا نصاب اولین نصاب الگ ہے۔ اگر وقت بچا تو اس کی طرف بھی انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے خطبے میں جس آیت کی تلاوت کی تھی وہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی کو خطاب کیا ہے اور یا ایھا النبی کہہ کے بلایا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو متعدد نبیوں اور رسولوں کے نام یا کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ نے ان نبیوں اور رسولوں کو ندا دی ہے تو ان کا نام لے کر یا آدم قرآن میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام کو ندا دی تو یا نوح کہا ہے، اللہ نے قرآن میں مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی تو یا ابراہیم کہہ کے ان کو پکارا تھا، اب سے 4000 سال پہلے قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے 1950 سال پہلے جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو آواز دی تھی تو یا موسیٰ کہا تھا، قرآن میں مذکور ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے آوازیں دی تھی تو ان کو یا عیسیٰ کہا تھا، ان کا نام لے کے ان کو بلایا اور پکارا تھا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، جن کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک کا، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، یہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ گردِ سفر تاروں کی سو، آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں، گرد و غبار ہوتا ہے، اور جب میرے مصطفیٰ کی سواری شب معراج میں جا رہی تھی تو ستارے روشنی بکھیر رہے تھے۔ گرد سفر تاروں کی سو، مرکب براقے تیز رو، سائی جبریل امی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام اور مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے قرآن میں ان کو بھی آواز دی ہے، لیکن اسلوب بدل گیا، انداز ندا و صدا بدل گیا۔ ماقبل کے نبیوں رسولوں کو ان کا نام لے کے پکارا، اور اللہ نے اپنے نبی کو پکارا تو فرمایا یا ایھا المزمل۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا ایھا المدثر۔ ہم دونوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔
तर्जमा है तो सूरह मुज़्ज़म्मिल में जो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल है वही सूरह मुद्दस्सिर में या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल होना चाहिए था अगर दोनों का तर्जमा एक है। नहीं, हम अपनी उर्दू जबान में तो तर्जमा कर सकते हैं दोनों का, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कमली ओढ़ने वाले, लेकिन अरबी जबान में अल मुज़्ज़म्मिल और अल मुद्दस्सिर इन दोनों के दरमियान चादर ओढ़ने वाले की शान कुछ इस तरह अल्लाह ने उजागर की। मुज़्ज़म्मिल कहते हैं मोटी चादर ओढ़ने वाले को, अल मुद्दस्सिर कहते हैं हल्की चादर ओढ़ने वाले को। मेरे मुस्तफा ने जब मोटी चादर ओढ़ी तो फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, और मेरे मुस्तफा ने न जाने किस अदा से वो हल्की चादर ओढ़ी होगी तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। दलील कुरान में मौजूद है, आप थोड़ी तवज्जो करेंगे तो मालूम हो जाएगा। रात में खून की होती है, मोटी चादर की जरूरत है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल, रात का तज़किरा है मोटी चादर के हवाले से। या अय्युहल मुद्दस्सिर, हल्की चादर ओढ़ने वाले, ये दिन में हल्की चादर ओढ़ी जाती है। क़ुम फ़अंज़िर, दिन में कैलूला किया, हल्की चादर ओढ़ी, अब उठिए और इंतजार का काम कीजिए। मेरे मुस्तफा ने न जाने किस अदा से वो मोटी चादर ओढ़ी, अल्लाह ने उनका नाम नहीं लिया, फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, और जब हल्की चादर ओढ़ी मेरे मुस्तफा ने तो उनका नाम नहीं लिया और फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। कहीं फरमाया या अय्युहन नबी, कहीं फरमाया या अय्युहर रसूल, कहीं खिताब के लिए ताहा और यासीन का उन्वान कायम किया। या मोहम्मद तो पूरे कुरान में मौजूद नहीं, जबकि ये उसलूब माक़बल के नबियों के लिए हमारे अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, कुरान में मज़कूर है। कुछ लोगों को रहबरी और रहनुमाई करनी आती नहीं है और वो रहबरी रहनुमाई करने के लिए आपके दरमियान आ गए। उन्होंने आपको, आपसे मुराद आप ही नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं जो भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला है, उन्होंने कुछ ऐसी रहबरी कर दी कि वो अपने घरों में या मोहम्मद का दोहरा लगाने लगे। कभी ये नहीं सोचा कि तुमने ये लफ्ज या किसके साथ लगा दिया। या मोहम्मद कहने की जुर्अत तुम्हारे अंदर पैदा कहां से हो गई? जब अल्लाह ने अपने नबी को या मोहम्मद नहीं कहा तो तुमने या मोहम्मद का तोरा घर में लगा के ये गुस्ताखी क्यों कर रहे हो? न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अपनी मजहबी रहबरी में अपने नबी की गुस्ताखी अपने घरों में करवा रहे हो। अल्लाह हमें और आपको हज़रत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा जानने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी, ऐ नबी, लफ्ज़ नबी मुस्तकिल तौज़ीह तलब लफ्ज़ है। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहन नबी। चलिए, मैंने कुरान के तर्जमे के बारे में आपके दरमियान सवाल रखा और उम्मत का एक बड़ा तबका लफ्ज़ कुरान के तर्जमे से ना आशना। आज आपको कुरान का तर्जमा याद हो गया, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। मुझे बताइए कि अल्लाह का तर्जमा क्या है? अल्लाह का तर्जमा क्या है? आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जिस अल्लाह के लिए आप 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, जिस अल्लाह के सामने आप हाथ बांधकर खड़े होते हैं, उसकी हम्द व सना बयान करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और आखिर में आप अपनी पेशानी और नाक उसकी बारगाह में रगड़ने लगते हैं, किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ अल्लाह की। सारी इबादतें आपने जिसके लिए वक्फ कर दी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सारी इबादतें जिसके लिए हम और आप करते हैं, उस अल्लाह के नाम का तर्जुमा मालूम है? छोटे छोटे बच्चे अपने नामों का तर्जुमा जानने के लिए उलमा और अइम्मा के पास जाते हैं। आप में से शायद कोई ऐसा हो जिसको अपने नाम का तर्जुमा मालूम ना हो। सब अपने नाम का तर्जुमा जानने की कोशिश करते हैं। ये किस कदर महरूमी की बात है। अपने नाम का तर्जुमा जानने का जज्बा बेदार हुआ, उलमा की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे वालिद मेरा नाम अब्दुल कादिर रख के गए हैं, इसका तर्जुमा क्या है? मेरे वालिद ने मेरा नाम
जमील रखा है, इसका क्या तर्जुमा है? मेरे वालिद ने मेरा नाम अब्दुल हई रखा है, इसका क्या तर्जुमा है? ये मिसालें दी मैंने। हर एक को अपने नाम के जानने की तर्जुमा जानने की फिक्र है, तो अब तक कुरान का तर्जुमा क्यों नहीं सीखा? क्या आपने जिंदगी में कोई ऐसी किताब पढ़ी है किताब के नाम का तर्जुमा मालूम ना हो? सबसे पहले टाइटल का तर्जुमा नहीं मालूम, उसके ऊपर जो सबसे पहले कुरान लिखा हुआ है उसका तर्जुमा नहीं मालूम, तो अंदर से दिलचस्पी क्यों पैदा हो? जिसकी इबादत करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, बस उठक बैठक करते हैं। जिसके लिए सारी इबादतें आप पेश करते हैं, जब उसके नाम का तर्जुमा नहीं मालूम तो दिलचस्पी कहां से पैदा होगी? किसी भी गैर मुस्लिम को यह पूरा हक है तो आपसे पूछे कि आप जिसकी इबादत करते हैं, हमारे 23 करोड़ देवी देवताओं का जो तुम इनकार करके ला इलाहा कहकर, इस इल्लल्लाह कहकर जिस अल्लाह की माबूदियत का तुम इकरार करते हो, उस अल्लाह का तर्जुमा बता दो मुझे। इतने मुसलमान हैं जो अपने खालिक और मालिक और राज़िक के नाम अल्लाह का तर्जुमा बताएं जो उसका इसमें जाती है, नहीं मालूम है। उसको भी अपने ज़हनों में मुनक्कश कर लीजिए, महफूज कर लीजिए। अल्लाह हकीकी माबूद। अल्लाह का तर्जुमा क्या है? हकीकी माबूद। उसके अलावा कोई माबूद है ही नहीं, ये इसका लफ्जी तर्जुमा है। और कोई आपसे पूछे कि मोहम्मद का तर्जुमा क्या है, तो कह देना जिसकी सब तारीफ करे। मोहम्मद का तर्जुमा इसकी सब तारीफ करें, न तू अरब के लिए है न तू अजम के लिए, तू एक आस्ती है हर चश्मे नम के। किसी मुसलमान ने नहीं, सरदार जी का एक शेर है गैर मुस्लिम का। तो मोहम्मद इसकी सब तारीफ करें, ये बेसिक तालीम आपके लिए जरूरी है। अगर आपने हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, तो फिर इन तमाम चीजों का जानना मेरे लिए भी और आपके लिए भी लाजिम और जरूरी है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफाते आलिया का तस्करा किया है। हमने आपको शाहिद बनाकर मबूस किया, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर मबूस किया, हमने आपको डराने वाला बनाकर मबूस किया, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर मबूस किया। वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको सिराज मुनीर बनाकर मबूस किया। सीरतुन नबी के हवाले से कुरान की इस आयत का आखिरी हिस्सा लफ्ज़ सिराजम मुनीरा में चाहता हूं कि आपकी खिदमत में इसकी कुछ वजाहत कर दूं। लफ्ज़ सिराज का उर्दू में एक तर्जमा है सूरज, और इस मफहूम में ये लफ्ज़ कुरान में मुस्तअमल है। लफ्ज़ सिराज का दूसरा तर्जमा है चराग, और ये भी कुरान में इस मफहूम में मुस्तअमल है। सिराज के माने सूरज भी और सिराज के माने चराग भी। अगर यहां पर सूरज का तर्जमा मलहूज़ नजर हो तो तर्जमा ये होगा, ऐ नबी हमने आपको चमकता दमकता सूरज बना करके भेजा है। बयान बंद कर दूं यहीं पर, यानी जो सबसे अहम बात कुरान के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा था, तो आपकी तवज्जो कहीं और चली गई, आप यहाँ वहां देखने लगे। आप इधर देखेंगे तो बात समझा सकूंगा मैं, और कहीं और देखेंगे तो फिर मैं अपनी बात आपको समझाने से कासिर रहूंगा। पूरी तवज्जो रखिए, कुरान सुन रहे हैं ना, ये दर्स कुरान है जो आपके सामने हो रहा है। वो दर्स कुरान में तो पूरी तवज्जो उधर मतलूब है। मैं तो कुरान करीम का तालिब इल्म हूं, तो कुरान की चंद बातें आपको बता देता हूं। सिराज का तर्जुमा अगर सूरज मलहूज़ नजर है तो तर्जुमा ये होगा, ऐ नबी हमने आपको चमकता दमकता सूरज बना करके भेजा। और अगर चराग का मफहूम मद्दे नजर हो तो इसका तर्जुमा ये होगा, ऐ नबी हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। जबकि सही सूरत हाल ये है कि अरबी जबान में सूरज के लिए मुस्तकिल एक लफ्ज मौजूद है अशम्स, और अरबी जबान में
चराग के लिए मुस्तकिल एक लफ्ज मौजूद है अल-मिस्बाह, और ये दोनों लफ्ज कुरान में सूरज के लिए अश-शम्स और चराग के लिए अल-मिस्बाह मज़कूर है। तो अगर सूरज बताना मकसूद था तो अल्लाह फरमा देते शम्सन मुनीरा, और अगर चराग बताना मकसूद था तो अल्लाह फरमा देते मिस्बाहन मुनीरा। अल्लाह ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया है सिराजम मुनीरा, इसमें सूरज का मफहूम भी दाखिल है और इसमें चराग का मफहूम भी दाखिल है। जानना चाहते हैं इसकी वजह? तो आप मुझे बताएं, रात और दिन में रोशनी हमारी जिंदगी की जरूरत है कि नहीं? दिन में भी हमें रोशनी चाहिए, रात में भी हमें रोशनी चाहिए। दिन में रोशनी किससे हासिल करते हैं? सूरज से। फिर रात में किससे रोशनी हासिल करते हैं? चराग से। बल्ब मत कहना, बल्ब तो आज की इजाजत है, ये आज के चराग हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना? दिन में हम रोशनी हासिल करते हैं सूरज से, रात में रोशनी हासिल करते हैं हम चरागों से। आप लोग असहाबे इल्म व दानिश हैं, मैं समझता हूं कि आप वहां पहुंच चुके होंगे जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा हमारे लिए दिन में भी जरूरी है, रात में भी हमें उनकी जरूरत है। अगर दिन है तो अल्लाह के नबी हमारे और आपके लिए चमकते दमकते सूरज बनकर मौजूद है, और अगर रात है तो मेरे मुस्तफा रोशन चराग बनकर मौजूद है। तुम दिन की जिंदगी में भी उनसे नसीहतें हासिल करो, उनकी सीरत पर चलो, और रात में भी वो रोशन चराग बनकर के मौजूद है। तुम उनकी जिंदगी को मिशाल रात और मीनारे नूर बना लो, कामयाब हो जाओ। सिराजम मुनीरा, हमने आपको चमकता दमकता सूरज बनाया है। जहां जहां दिन है मेरे मुस्तफा वहां के इंसानों के लिए चमकते दमकते सूरज बनकर रोशनी दे रहे हैं, और जहां जहां रात है वहां मेरे मुस्तफा रोशन चराग बनकर उनको रोशनी अता कर रहे हैं। अल्लाह हमें पूरी जिंदगी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हज़रत मौलाना ने मेरे ताल्लुक से एक बात इरशाद फरमाई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं उसकी तफसील में जाए बगैर आपके लिए निसाबे कुरान बता के जाऊंगा। आप कुरान का मुताला कहां से शुरू करें, एक मसला है आपके लिए। उलमा के लिए लाजिम और जरूरी है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें, बिस्मिल्लाह से, और मिनल जिन्नति वन नास तक पूरे कुरान का तर्जमा, उसकी तफसीर, उसके अहकाम व मसाइल सीखें। ये उलमा की जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियों में फिलहाल ये शामिल नहीं है। आप कुरान को कहां से सीखना शुरू करें, वो निसाब आज आपको जानना है। और उससे पहले फितने शकीलियत के हवाले से हजरत मौलाना ने बड़ी कीमती बात बताई कि ये कहा गया कि इस फितने का तज़किरा मत करो वरना उसकी तशहीर हो जाएगी। दबा के रखा, वो फितने शकीलियत बढ़ता रहा। तो मैं आपको कुरान के हवाले से मिसाल देता हूँ। आपसे कहा गया कुरान पढ़िए, और अभी तिलावत जरूर हुई होगी कुरान की इस इजलास के आगाज में। तो कारी साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया। कहां से शुरू किया आप बताएं? सबसे पहले क्या पढ़ा था उन्होंने? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या ये कुरान है? ये कुरान नहीं है। कुरान की 6000 से ज्यादा आयतों में यह आयत शामिल ही नहीं है। ये कुरान नहीं है, कुरान के हुक्म की तामील है। फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तभी आप इस औज़ु बिल्लाह में तब्दीली कर सकते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लईन पढ़ सकते हैं, अल्फाज का इजाफा कर सकते हैं। कुरान पढ़ने से पहले शैतान का तज़किरा जरूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यह हुक्म इलाही हमें आगाह कर गया, जो जितना बड़ा दुश्मन हो उसके तज़किरे उतने ही ज्यादा होने चाहिए। अगर तुमने दुश्मन का तज़किरा छोड़ दिया तो फिर नई नस्ल दुश्मनों से वाकिफ नहीं हो पाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। या जब जब कुरान पढ़ो पहले
उसका नाम लेकर अल्लाह की पनाह उससे चाहो ताकि तुम उसके शर से महफूज रहो। कुरान मजीद के पहले 2 रुकों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के तमाम इंसानों को फिक्री, ज़हनी, मजहबी, एतिकादी, अमली लिहाज से 3 गिरोहों में तकसीम किया है। पहला तबका अहले ईमान का है, दूसरा कुफ्फार का है, तीसरा मुनाफिकीन का है। 2 तबकों का तज़किरा बहुत मुख्तसर है, मुनाफिकीन का तज़किरा सबसे ज्यादा है। ये खतरनाक हिस्सा है। याद रखिए, दुश्मन के तज़किरे जारी रहेंगे तो हिफाजत की फिक्र रहेगी। इसलिए जो भी फितना है उलमा के हवाले से सुनते रहिए और उनके सामने फलसफा कभी पेश मत करना, इसका तज़किरा मत करो वरना उसकी तशहीर हो जाएगी। तशहीर होगी और गुनाह की जितनी ज्यादा तशहीर की गई तभी तो लोग उससे बच सके। अगर उसकी तशहीर न की जाती तो लोग उस बीमारी से अपने आप को कैसे बचाते? आपके लिए कुरानी मिसाल ये है कि कुरान मजीद में जहां कहीं अल्लाह ने आपको बुलाया है, सबसे पहले आपको वो देखना है। अल्लाह ने नबी से क्या कहा, अल्लाह ने अहले किताब से क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, या अहलल किताब, वो अभी आपकी जिम्मेदारियों में दाखिल नहीं है। अय्युहल काफिरून, या अय्युहल्लज़ीना कफरू, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस कुरान में अल्लाह ने आपको भी तो बुलाया है, नबियों और रसूलों को आवाजें दी हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन को बुलाया और पुकारा है, और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए निदाएं कुरान में या अय्युहन्नास के उन्वान से मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? आप साहिब ईमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है तो फिर आपको अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के बुलाया, मालिक और अपने मालिक की आवाज सुनने के लिए तैयार है। क्या कोई कारखाने का मालिक अपने कारखाने में उस मजदूर को रखेगा कि मालिक आवाज देता रहे और वो मजदूर, उसका मुलाजिम चलता चला जा रहा है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कौन बुला रहा है, कौन पुकार रहा है, कौन आवाजें दे रहा है, मुड़के भी नहीं देखता, अपने मालिक की सदा पे गौर नहीं करता। वो मालिक ऐसे मुलाजिम को अपने कारखाने में रखेगा? भगा देगा। मेरे ईमान वाले भाइयों, हमारा और आपका रब हमें बुलाता रहा, पुकारता रहा, आवाजें देता रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। और ईमान वाले हैं कि उन्होंने एक मर्तबा भी अपने खालिक और अपने मालिक की आवाज को नहीं सुना। तफसीर दुर्र मंसूर में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का ये फरमान आलिशान मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुरान में जहां कहीं भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है तो अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि वो अगली बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उनका मालिक उन्हें कोई खास बात बताना चाहता है, उनका अल्लाह उन्हें किसी काम से रोकना चाहता है। अगली बात को सुनने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। ये इमामुल मुफस्सिरीन की हिदायत है हमारे और आपके लिए। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं जिसमें से 86 सूरतें मक्की हैं। किसी मक्की सूरत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं आया है। मदनी 28 सूरतें हैं, उनमें से 20 सूरतों में 90 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है। 90 मरतबा अल्लाह ने हमें और आपको बुलाया और पुकारा है, आवाजें दी हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या एक भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आपको याद है कि हमारा अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है? हमारा अल्लाह हमें हुक्म कौन सा देना चाहता है? हमारा अल्लाह हमें किस काम से रोकना चाहता है? हमारा अल्लाह हमें 90 मरतबा पुकारता रहा अलग अलग मकामात पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और हम हैं कि एक मरतबा का भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनने के लिए तैयार नहीं। ये है आपका कुरानी निसाब जहां से आपको अपना सबक शुरू करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अगर एक हफ्ते में एक सीख लिया तो 90 हफ्तों में आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। अपने रब के निदा को सुनना आपके लिए, हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये आपका निसाब कुरान है। चंद तालीमात का तज़किरा कर दूं क्योंकि वक्त बेपनाह
अजान होने वाली है, 8:15 की जमात है, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट बाकी बचे हैं। 5 मिनट में, चलिए 5 मिनट वाली बात मैं आपको सुनाई देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी मौजूद हैं, अनस इब्न मालिक रिवायत करावी है, सही हदीस से मुस्नद इमाम अहमद ने हम्बल। नबी अलैहिस्सलाम जहां तशरीफ फरमा है, कुछ फासले पर एक साहब गुजरे हुए जा रहे हैं। नबी की बारगाह में मौजूद उन साहब ने उन जाते हुए साहब को देखा तो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में वो अर्ज गुजार हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो साहब जो जा रहे हैं मैं उनसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, मुझे आपसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत, आपको मुझसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत, आपको दूसरों से अल्लाह के वास्ते मोहब्बत, यही काफी नहीं। जब उन सहाबी ने मेरे मुस्तफा को अपने दिल का राज बताया कि वो साहब जो जा रहे हैं मैं उनसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूँ, करोड़ों दुरूद सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें जीने का सलीका अता कर दिया, हमारा मुआशरा मोहब्बत के बंधन में बंधा रहे इसका तरीका अता कर दिया। मेरे मुस्तफा ने पूछा कि तुम उनसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करते हो, ये बताओ तुमने कभी उनसे इसका इजहार भी किया है, कभी उनको जाके बताया भी है कि तुम अल्लाह के वास्ते उनसे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह, मैंने उनको बताया कभी नहीं, मोहब्बत तो उनसे मुझे बहुत है अल्लाह के वास्ते, मगर मैंने अपनी इस मोहब्बत का इजहार उनसे कभी नहीं किया। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उनको बता कर भी आओ कि मैं तुमसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। गए, तेजी के साथ में गए, उनसे मुलाकात की और उनसे जो जुमला कहा, बड़ा प्यारा जुमला अहादीस के ज़ख़ीरों में मौजूद है, इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, मैं आपसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। आप सलाम करें तो जवाब मिलता है ना, अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम मिलता है। उन्होंने कहा इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, मैं आपसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। उन्होंने जवाब दिया अहब्बकल्लज़ी अहबब्तनी लहू, जिस अल्लाह के वास्ते तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी दुआ है कि वो अल्लाह तुम्हें अपने महबूब बंदों में शामिल कर दे। ये हमारे समाज और हमारे मुआशरे को मोहब्बत के बंधन में बांधने के लिए बड़ी कीमती सुन्नत है। इस सुन्नत को अपने महल्ले में, अपनी आबादी में और अपनी बस्तियों में आम करो। जिसको जिससे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत है, मोहब्बत रखना ही काफी नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्या किस्मत होगी मुआज़ इब्न जबल की, मुआज़ का हाथ है उस नूरानी हाथ में जिसकी एक उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। मुआज़ का हाथ उस मुक़द्दस हाथ में है। छोटे से प्याले में जब मेरे मुस्तफ़ा का वो हाथ गया तो उंगलियों के दरमियान से पानी का वो चश्मा जारी हो गया। 1400 सहाबा के लिए काफी हो गया। आज मुआज़ इब्न जबल का हाथ उस नूरानी हाथ में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआज़ इब्न जबल का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि मुआज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। सुन्नत है मोहब्बत का इजहार। ये दुनिया वाले कभी नहीं डरते। आई क्या जो कुछ कहते हैं नौजवान, वो हालांकि कोई बुरा जुमला नहीं है लेकिन बुरे मकामात पे इतना इस्तेमाल हुआ कि भले लोग वो जुमला इस्तेमाल करने से कतराते हैं। इन्नी उहिब्बुक का तर्जमा कर लेते हैं अंग्रेजी जबान में, वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। दुनिया के लोग अपनी मोहब्बत के इजहार में नहीं शर्माते तो मेरे ईमान वाले भाइयों, अपने नबी की सुन्नत के इजहार में क्यों शर्माते हो? आपको जिससे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत है उसे बता दो। मेरे मुस्तफा ने हुक्म भी दिया और करके भी दिखाया। मुआज़ इब्न जबल का हाथ अपने हाथ में लिया और फरमाया कि मुआज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। मुआज़ ने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलल्लाह, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मुआज़, किसी भी नमाज के बाद ये पढ़ना न भूलना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि
मुतल्लिक अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप हज़रत मौलाना साहब अल-कराम से बड़ी कीमती बात समाअत फरमा रहे थे। अब अज़ान होने वाली है और इंशाअल्लाह 15 मिनट के बाद 8:15 बजे नमाज भी होगी। आप ज़रा तशरीफ़ ले चलें। इधर छोटे बच्चों का जलसा पूरा हो गया है। आप छोटे बच्चियाँ अपने घर को जाएंगी और इशा के बाद आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इशा के बाद हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामद बरकातहू का बयान होगा और आपके महबूब हज़रत मौलाना अमीन अहमद खान तमैदी तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनका होगा। हज़रत मौलाना अफ़ज़ल अहमद साहब दामद बरकातहू का इलाहाबाद के आप उनका बयान समाअत फरमाएंगे इशा की नमाज के बाद। तो आप सुन्नतों से फारिग होकर फिर जलसागाह में आए, जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। और इशा के बाद दस्तारबंदी भी होगी और हाफिज बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा। तो हाफिज बच्चे बच्चियाँ भी इशा के बाद आएंगे, बाकी छोटे बच्चे बच्चियों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जलसा पूरा